let's begin today's session. And we are just okay. Good afternoon, Christina. Yes. Okay. So we will proceed with the application of trigonometry. In today's session, we will proceed with some applications of trigonometry. So we will use the previous concepts that we have covered. So yes, what we have covered till now, beta? हर्षिनी क्या क्या डिस्कस किया अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में identities. Yes, identities. तो let me recall all the okay. Good afternoon, Mansi. So let me recall all the concepts firstly, then we'll proceed with application of trigonometry. तो फर्स्टली क्या डिस्कस किया था बेटा? दैट वाज द रेशियोज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? That was first, and secondly we have practiced some questions based on it. Practice questions, and thirdly identities we have covered angles. Yes, we have covered angles जो trigonometry के function के angles होते हैं, that we have covered. And fourthly, the last session, it was about the identities. तो 3 identities की हैं बेटा हमने. तो that was the part of introduction of trigonometry. That was part of introduction of the trigonometry. Then now comes with the new chapter. ये नया चैप्टर हो जाता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर हाइट्स डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? हाइट्स, पर्टिकुलरली हाइट्स निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स को यूज करके. बस यही है. तो स्टार्ट करें. शुड वी स्टार्ट? ओके. तो यस, तो सेम चीज है बेटा. एन एक्सपीडिशन टू हिमालयस, इट मींस वी आर डीलिंग विद सम ऑफ हाइट्स. यस, ओके. तो good afternoon, Ishika. Ishika is also here. So yes, an expedition to the Himalayas. So we are dealing with the some heights, distances. तो yes, height of the peak. तो बेटा इस height of the peak कैसे निकाल सकते हैं हम? Suppose हमारे पास एंगल पता हो, हमारे पास एंगल की मेजरमेंट हो यहाँ पर. Suppose this is 60. So if we know this distance or this, we can find out the height of the mountain, the peak of the mountain कितनी ऊंची है वो. तो yes, तो let's learn about it more from the master tutor video. Let's say we have a mountain peak here. Or for simplicity, instead of the peak, let's start with a pole. Let's start with a pole. You know how to measure the height of a pole? You can, in the exact same way, measure the height of a peak as well. So let's say I have a long pole here and I need to measure its height. Now, for the sake of simplicity, I'm going to assume that I'm actually standing inside a hole of sorts and the ground is at my eye level. So the base of the pole starts at my eye level and the pole goes on further up from there. Now we need to measure the height of this pole. It is going to be trigonometry that we use to measure the height of this pole. But where's a triangle? Do we see a triangle anywhere here? Actually, we do see one side, right? Where we need 2 more lines, right? Or 2 more sides to form the triangle. Now, if you join the pole to my eye, that could be the second side of the triangle. This is nothing but the distance on the ground, how far away I am from the pole. Right? That's the second side. Now, imagine me looking up at the pole and imagine the ray of light that is touching the top end of the pole and reaching my eye. If you were to imagine that ray of light and you draw a line for it, call it my line of sight, that could be the third side of the triangle. That could be the hypotenuse of the third side of the triangle. Great, right? We have a triangle here. The height
One side, the vertical side of the triangle, is our pole. The horizontal side is the distance between the base of the pole and my eye. And the third side is my line of sight. Perfect. So we have a triangle here, right? We have a triangle here. All we need to do is measure one side of this triangle. Let's say we measure it and it's 30 meters. So I'm standing 30 meters away from the pole. Now the height of the pole, say the pole is high, we cannot reach the top. You're not going to do pole climbing, right? So we cannot practically measure the height of the pole. If we cannot measure the height of the pole, neither can we measure the distance of the hypotenuse. Trigonometry is something to do with angles. One angle is anywhere right angle triangle, which is why we can apply trigonometry in this triangle. Can we measure one more angle? Can we measure this angle as I look up at this pole, my line of sight? Can you measure the angle of my line of sight with respect to the horizontal? Can you measure this angle? Instead of the naked eye, let me take a binocular, right? Let me take a binocular at my eye level. Let me fix it to a post, and the post has a protractor, right? So I can measure the angle at which my binocular is turning. If I measure the angle at which the binocular is with respect to the ground, I can easily measure the angle. I already had a protractor fixed here, right? So I can easily measure the angle. So this angle, we now know, right? Let's say it's 60 degrees. So now we know this angle is 60 degrees and the base, this distance, this length is 30 meters. Now in this triangle, can we very easily measure the height? Now, let me ask you one question. Does this pole necessarily have to be above the ground for me to be able to measure it? What if the pole, the same pole, was below the ground? Let's turn it around and keep it below the ground. Can I still measure its height? Definitely, right? You'll say definitely. I take my same binocular. Instead of starting to look up, I start to look down and I keep looking down until I can see the top of the pole. I stop there. You can again trace my line of sight and you can again measure the angle. Correct? Now you're not likely to have poles which are underground. But if I replace the top of the pole with a submarine, you could have a submarine which is below sea level, right? And it's the exact same procedure that you would follow to measure the depth at which the submarine is below the sea level. Exact same method, right? Again, you have this distance as 30 meters. You would have this angle as 60 degrees. You would find out that the depth of the submarine below sea level was 30√3 meters. So it doesn't matter whether the object is very far away from you above you or very far away from you below you. You can use the same methodology to find out how far away the object is. When the object is above us, as the pole was, we call this angle that we measured the angle of elevation. Simply because we are looking up, right? The object is elevated compared to us. When you're measuring a submarine which is below your eye level, so this angle which is below your eye level, you would call it the angle of depression, correct? Because the object is depressed with respect to your eyes, right? With respect to your line of sight. In very simple words, if you need to look up to see it, it's angle of elevation. If you need to look down to see it, it's angle of depression. That's all it is. Correct? So you measure either the angle of elevation or the angle of depression depending on where the object is located. You measure one side of the triangle, correct? Typically the side on the ground, because that is the one which is measurable, and that helps you find out the height. Yes, so let's summarize it. And Ganesh and Aditi is also here, so welcome to the class beta. तो angle of elevation क्या होता है? Let me summarize it. तो angle of elevation इसको क्या बोलेंगे बेटा? उन्होंने क्या यूज किया इसको? लाइन ऑफ साइट. That is our line of sight. That is our line of sight. And always remember the angle, we only consider the angle that is made with the horizontal. तो horizontal के साथ जो भी angle बनेगा, that is our angle, line of sight. तो जैसे हमने ऊपर देखा तो एक imaginary line बनती है, that is called line of sight. And angle when we are seeing upward, जब बेटा हम ऊपर देखते हैं तो angle made with the horizontal is called angle of elevation. Is it clear? Clear है? Yes. Okay.
यस यस। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा यहाँ से यहाँ पर ध्यान से देखना, तो अगेन हम रिकोटिंग इट, तो एंगल वी ऑलवेज कंसिडर द एंगल दैट इज मेड विद हॉरिजॉन्टल, वेदर इट इज जो बेस वाला हॉरिजॉन्टल हो, एंड व्हेन वी आर सीइंग डाउनवर्ड जो ये हॉरिजॉन्टल होगा बेटा, दैट इज, एंड वी आर सीइंग डाउनवर्ड इट मींस दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऑलवेज जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, द एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, that is our angle. When we are seeing downward, it is our angle of depression. When we are seeing upward, that is our angle of elevation. क्लियर है ना? तो हॉरिजॉन्टल को ऑलवेज कंसिडर करना है। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ओके मनसुख, क्रिस्टीना, ओके क्रिस्टीना, हर्षिनी, इज इट क्लियर? यस मानसी, गणेश, Ritika and Ishika, is it clear? Yes. तो again important ratios, तो सेम बेटा पुराना कॉन्सेप्ट है, एंड हु वुड टेल मी द साइन थीटा, तो वन बाय वन पूछते हैं सभी से। एंड हर्षिनी टेल मी द साइन थीटा। Sir, the sin theta is P by H. P by H, yes. And the cos theta, who would tell me? Mansi? Mansi, cos theta would be? Ishika, you can tell me beta. Ishika. Aditi, you can tell me. So it's B by H. B by H, yes, well done. And yes, Mansi, okay, okay beta, Mansi. B upon H. Ishika, tan theta would be? ओके नो वरीज। देन tan थीटा को क्या होता है बेटा? P अपॉन B, एंड साइन थीटा कोसेकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इट मींस H अपॉन P, एंड वी ऑलवेज कंसिडर ऑपोजिट साइड एज ए परपेंडिकुलर, एंड एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस। तो secant is reciprocal of cos theta, that is H upon B, and cotangent is reciprocal of tangent B upon P. तो that was from the last chapter, तो इसी को भी बेटा यूज करना हमने। yes, तो is there any need to repeat this part, एंगल पार्ट बेटा? क्या इसकी दोबारा जरूरत है रिपीट करने की? टेल मी, हर्षिनी, मानसी, शिका, क्रिस्टीना, मनसुख, गणेश, अदिति एंड रितिका। ओके ओके मनसुख, यस बेटा। तो ऑलवेज रिमेम्बर बेटा साइन थीटा को यूज करना है हमने, साइन थीटा को यूज करना है सभी सारा टेबल बनाने के लिए। तो साइन थीटा को तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो साइन 0 इज 0 डिग्री, and 30 degree, sin 30 degree is 1 upon 2, 45 would be 1 upon root 2, and 60 degrees root 3 upon 2, 90 degree is 1। तो cos थीटा क्या होता है बेटा? अगर इसका हम ग्राफ लेना, इसका जो लॉजिक कहाँ से आया रिवर्स का, साइन थीटा ग्राफ ऐसे होता है, एंड ये cos थीटा ग्राफ होता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो इट इज काइंड ऑफ रिवर्स। तो दैट इज वाई cos थीटा की वैल्यू रिवर्स ऑफ sin थीटा होती है। तो cos थीटा जो लास्ट में है वो 0 डिग्री पहले आ जाएगा 1, एंड जो सेकंड लास्ट में है वो सेकंड में आ जाएगा, एंड 45 डिग्री ये मिडिल में है ही, एंड जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा, एंड 0 डिग्री जो 0 वैल्यू है जो लास्ट में आ जाएगी। For tan theta, we find tan theta by ratio of sin over cos theta। तो sin over cos क्या बना बेटा? 0/1 क्या होता है? 0 होता है, एंड 1/2 over root 3/2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट, एंड इट वुड बी 1/√3। सेम यार, सेम के साथ सेम कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा।
tan 45 and 60 root 3 upon 2 upon 1 upon 2 करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, रूट 3 अपॉन 1 मीन्स रूट 3 कंसिडर करते हैं ऑलवेज, एंड 1 अपॉन 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए इन्फिनिटी, तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इतना क्लियर है मनसुख? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हर्षिनी, मानसी, इशिका, क्रिस्टीना, गणेश, अदिति, रितिका, यस, ओके। तो कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? साइन थीटा का। तो 0/0 है जहां पर साइन, तो इसको 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, एंड 1/0 इज कंसिडर्ड एज ए इन्फिनिटी, एंड 1/2 2/1 मीन्स 2 लिख सकते हैं। 1/√2 वी कैन राइट इट एज √2/1 और √2 लिख सकते थे, एंड √3/2 we would consider it as a 2/√3, and 1/1 इसका रेसिप्रोकल करें 1/1, 1 आ जाएगा बेटा, एंड सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 1/1 है बेटा, तो 1/1 मीन्स 1, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम cos का, and √3/2 रेसिप्रोकल ऑफ इट इज 2/√3, and 1/√2 रेसिप्रोकल √2/1, and 1/2 2/1, 0/1 इसको 0/1 लिख सकते हैं, एंड इसका रेसिप्रोकल बेटा 1/0, तो इट मींस इन्फिनिटी। cot is reciprocal of tangent, we are considering tangent। 0/1 इसको लिख सकते हैं 1/0 मींस इन्फिनिटी, 1/√3 and 1/1 1 आ जाएगा, एंड √3/1 it would be 1/√3, and we are left with 1/0 and 0/1 is 0। Is it clear बेटा? all the table कैसे बना? मनसुख, गणेश, अदिति, हर्षिनी, मानसी, शिका एंड रितिका, ठीक है बेटा, ओके। तो इसी को यूज करना है बेटा, तो यू हैव टू मेमोराइज साइन थीटा ओनली बस। ओके, लेट्स सॉल्व इट मैथमेटिकली। कैसे? उसी की बेटा उन्होंने क्या बनाई है, दैट वाज अ लाइन ऑफ साइट एंड इट इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज ये जो नीचे वाला बेस वाला जो क्या है हॉरिजॉन्टल है उसके साथ बन रहा है, एंड वी आर सीइंग अपवर्ड, तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड वी हैव टू फाइंड। तो इसकी जो डायग्राम ऐसे कुछ बनेगी, तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? ए बी फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन का कैसे यूज करेंगे बेटे? फंक्शन कैसे चूज करेंगे? जो फंक्शन है हमारे साइन थीटा कॉस थीटा, तो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर ये बेटा 1500 मीटर है तो दैट इज आल्सो 1500 मीटर, एंड इन ट्रायंगल दैट इज आवर बेस एंड ऑपोजिट साइड इज P। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमने फाइंड आउट करना है P फाइंड आउट करना है, एंड वी नो B, तो P एंड B किस में आते हैं? हु वुड टेल मी? हर्षिनी, P एंड B किस में आते हैं बेटा? किस फंक्शन में आते हैं? So in sin theta, नो बेटा, cos theta. टेंजेंट बेटा। तो यू कैन ये टेबल बना लो, ये बना लो जी, P B P, पहले के ऊपर साइन थीटा लिखते हैं बेटा, दूसरे के ऊपर कॉस थीटा लिखते हैं हम, तीसरे के नीचे tan थीटा, एंड H B। तो P एंड B किस में आ रहे हैं बेटा? नीचे देखो, टेंजेंट में आ रहे हैं ना ओनली। इज इट क्लियर? तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो फाइंड आउट करना है दैट इज आवर परपेंडिकुलर, एंड जो ऑलरेडी हमें पता है दैट इज B। तो P एंड B कॉम्बिनेशन किस में बनता है? ओनली टेंजेंट, और नीचे इसके क्या होता है बेटा? कोटेंजेंट होता है, तो टेंजेंट यूज करते हैं हम ऑलवेज, तो ऊपर वाले यूज करेंगे। तो टेंजेंट 60 क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या है बेटा? BC। तो AB को फाइंड आउट करना है, BC 1500 है, तो tan 60 क्या होता है? √3 होता है, एंड AB की वैल्यू क्या है? 1500 को मल्टीप्लाई किया तो AB की वैल्यू 1500 √3 मीटर आई, एंड दैट इज ओनली AB।
हमारी पीक क्या है बेटा, यहां से देखो पीक क्या बन रही है, 1.5 मीटर भी बीच आ रहा है, तो वी वुड ऐड, इसमें वो ऐड कर देंगे, वी कैन राइट इट एज, तो दैट इज आवर आंसर। क्लियर है सभी को? हर्षिनी, मानसी, इशिका, अदिति, रितिका, इज इट क्लियर बेटा? मानसुख, क्रिस्टीना, गणेश, यस। तो फंक्शन कौन सा चूज करना है बेटा, वो ध्यान देना है हमने, जो फाइंड आउट करना हो वो, एंड जो ऑलरेडी हमें पता है उसको, उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो हमें देखना पड़ेगा इसमें, वो किस में आ रहा है, किस फंक्शन में आ रहा है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड फंक्शन। ओके, तो सेम एप्लीकेशन क्या है, वी ऑलवेज फाइंड आउट हाइट्स ऑफ पीक्स, हाइट्स पीक्स एंड सम ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ लाइट। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा यहीं से आते हैं, फ्लाइट्स के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था, तो हाइट ऑफ ग्लेशियर, तो यस, पोल क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन if 50 meter tall building casts a shadow of length 50√3 meter. Give it a try beta, give it a try and we'll discuss it. Aditi, Ritika, Ganesh, all of you, Mansukh, give it a try. तो डायग्राम देख लो इसकी कैसे बनेगी, टॉल बिल्डिंग है 50 मीटर एंड शेडो है बेटा इसकी 50√3 and we have to find the angle of elevation, means that this angle we have to find out. तो क्या पता है बेटा इसमें हमें, ये बेस पता है एंड पी परपेंडिकुलर पता है, एंड दैट इज किस में आता है, ये tan में, तो tan थीटा क्या होगा, p 50/50√3, तो 50 के साथ 50 कैंसिल आउट हो गया, एंड यस मनसुख, यस क्रिस्टीना, यस, तो 1/√3 कहां पर होता है थीटा, दैट इज, यस अदिति, वेल डन बेटा, मनसुख वेल डन, वेरी गुड, एंड 1/√3 कहां पर होता है बेटा, दैट इज एंगल 30। इज इट क्लियर? हर्षिनी, मानसी, इशिका, इशिका इज इट क्लियर? इशिका आर यू देयर बेटा? रितिका, गणेश, yes, yes, well done. So that is how we choose the function. Again read it carefully beta. Assertion क्या है, if the length of shadow of a vertical pole is equal to its height, then angle of elevation of sun is 45. Reason according to Pythagoras, hypotenuse is equal to, hypotenuse square is equal to length means perpendicular square plus base square. तो आंसर करो बेटा, यस, इसको आंसर करो, यस, बोथ हर, ओके, बोथ, ए मनसुख ने लगाया, क्रिस्टीना ने बी लगाया, दिति ने बी लगाया, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? यस, बोथ आर करेक्ट, तो यस बोथ आर करेक्ट बेटा, क्योंकि 45 बनेगा, 45 पर 1 आता है, वो 40, ये अगर इक्वल है बेटा, अगर इसको x मानूं इसको भी x मानूं, तो x अपॉन x मींस p अपॉन b क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 कहां पर होता है, ये p एंड b का कॉम्बिनेशन है, तो tan 45 पर होता है, दैट इज करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। मगर ये देखो बेटा, ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है हमारे एंगल को, यस, तो b ऑप्शन वुड बी राइट, तो b ऑप्शन वुड बी राइट, यस। मनसुख, इज इट क्लियर बेटा? तो जो पाइथागोरस है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही वी एंगल कितना आएगा, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद द बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में भी, तो दैट इज सॉल्यूशन, यू कैन हैव अ लुक, तो सेम जैसे आपने किया है, यस,
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर, आई थिंक प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्लाइट्स के रिलेटेड, द सबमरीन के रिलेटेड कुछ ऐसे। तो लेट मी रीड इट फर्स्टली। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम एन पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। तो 60 ये एंगल है फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड। इट मींस यहां से यहां तक 30 सेकंड का टाइम लगा बेटा। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, एंड इट इज जो बेस वाला हॉरिजॉन्टल उसके साथ बन रहा है, तो दैट इज 30। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, तो हाइट भी दी हुई उन्होंने, दैट इज, तो यहां से दो ट्रायंगल्स बनेंगी, दो ट्रायंगल्स मींस दो बार हमने फंक्शन को ढूंढना है कौन सा लगेगा, तो दैट इज आर 3000√3। अगेन कांस्टेंट हाइट पर वो ट्रेवल कर रहा है, तो दैट इज अगेन, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। तो जहां से बेटा टाइम दिया हुआ, अगर वो हमें डिस्टेंस पता लग जाए तो वी कैन फाइंड आउट इजीली। अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो वी कैन फाइंड आउट द स्पीड बाय डिस्टेंस ओवर टाइम। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्टली फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल क्या आएगा बेटा, फर्स्ट ट्रायंगल ये हमने ड्रॉ कर ली, यहीं से कर लो कुछ, यस दोबारा ड्रॉ कर लो यहां से, यस। तो फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फर्स्टली, दैट इज आर 3000√3 ए बी सी, एंड एंगल क्या है बेटा 60। तो वी नो एंड वी हैव टू फाइंड दिस, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है नीचे, तो इट मींस वी आर गोइंग विद द बेस एंड परपेंडिकुलर। तो tan थीटा अगेन, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है बेटा ऐसे क्वेश्चन में tan थीटा ही फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द हाइट परपेंडिकुलर और हाइट फाइंड आउट करनी होती है। तो tan 60 क्या है बेटा इस ट्रायंगल में 3000√3 ओवर दैट इज BC, इसको BC मान लो। tan 60 इज √3 एंड BC की वैल्यू क्या आई बेटा, BC वुड बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, एंड BC की वैल्यू क्या आई हमारी, दैट इज 3000। तो सेकंड ट्रायंगल का बेस देखो बेटा कौन सा बन रहा है। इज इट क्लियर टिल नाउ, इज इट क्लियर टिल नाउ? जितनी ट्रायंगल्स बनेंगे बेटा उतनी बार फंक्शन लगेगा, ऑलवेज रिमेंबर इट। क्लियर है ना यहां तक? यस। तो दूसरी ट्रायंगल देखो, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये 30 डिग्री। तो इसमें बेस सारा कवर हो रहा है, इसमें बेस सारा कवर हो रहा है, तो हम इसको दोबारा बनाते हैं। अब लेट मी, यस, ये तो फर्स्ट वाली बन गई थी हमारी, एंड अगेन दैट आर सेकंड। तो बेस, उसका बेस भी कवर हो रहा है, इट मींस सेकंड ट्रायंगल में अगर लगाएंगे बेटा क्या सारा फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, एंड दैट इज आवर एंगल 30। तो लेट्स राइट इट BCD। तो सेम हाइट पर ट्रेवल कर रहा है अगेन 3000√3, एंड नाउ वी वुड फाइंड CD जो सारा बेस कवर हो जाएगा। तो tan 30 बन रहा है, tan 30 वुड बी अगेन P/B, तो tan आएगा, दैट इज वाई 3000√3 ओवर CD पूरा, दैट वाज B। तो क्या है बेटा tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 ओवर CD, एंड नाउ C क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो 3000 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो यहां से 3 बाहर आ गया, एंड वी गॉट द वैल्यू 9000। एंड पूरा बेस क्या आया बेटा 9000 आया, एंड जो छोटा बेस है दैट इज आर 6000। तो हमने ये फाइंड आउट करना था, बिकॉज हमें ये टाइम दिया हुआ है दैट इज 30 सेकेंड्स।
तो सब्ट्रैक्शन कर लो बेटा, 9000 माइनस 3000, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है जो हमें एज पर दी टाइम, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना था 9000 माइनस 3000 and it would be 6000 meter. Is it clear till now? हर्षिनी, मानसी, मानसुक बेटा, गणेश, अदिति, ओके ओके, यस बेटा, इशिका, रितिका, लविशा, क्रिस्टीना, यस ओके। तो टाइम क्या है बेटा, 6000 मीटर कितने टाइम में कवर हुआ है, 30 सेकेंड्स में। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस 6000 है एंड टाइम 30 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन कवर हो गया, कोई डाउट? मानसुख, मानसी, अदिति, हर्षिनी, नो डाउट? ओके ओके क्रिस्टीना। तो ऐसे ही बेटा ऑलवेज रिमेंबर इट, जितनी ट्राइंगल्स उतनी बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, उतनी ट्राइंगल्स में फंक्शन लगेगा। तो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, यू कैन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन आल्सो। तो पहले स्मॉल ट्राइंगल पर हमने फंक्शन को लगाया एंड ट्रिग्नोमेट्री वी हैव अप्लाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड then in the second triangle. Yes, so most important question again. तो now we are dealing with the angle of depression. तो हमने angle of depression क्या सीखा था? Angle of depression was the angle made with the जो upper horizontal होता है बेटा, जो ऊपर वाला horizontal होता है, तो vertical के साथ नहीं बनाना एंगल, तो बहुत बार गलती हो जाती है। तो इसको पहले लेट मी रीड इट। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द लाइट हाउस ऑब्जर्व्स टू बोट एज शोन इन द फिगर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ वन बोट इज 60 डिग्री एंड ऑफ द अदर बोट इज 30 डिग्री। तो एंगल कैसे चूज करना है? तो जैसे हम यहां से बेटा यहां देखते हैं एंड वो बोट आगे आई, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। एंगल when we are moving closer तो एंगल बढ़ जाता है बेटा। तो उन्होंने जानबूझकर क्या किया है, 60 को पहले दिया है एंड 30 को बाद में। तो वी हैव टू चूज इट केयरफुली। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी हाइट और बेस के पास एंड वी आर लुकिंग डाउनवर्ड एंड इसके नियरर मूव कर रहे हैं बेटा, एंगल बढ़ता जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द नियरेस्ट बोट इज 100। इसका डिस्टेंस है 100 मीटर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं पहले। डायग्राम कैसे बनेगी? सपोज दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, बनाते हैं बेटा, यस। सपोज दिस इज सेकंड। तो नियरेस्ट क्या है बेटा, नियरेस्ट बोट दिस एंड डिस्टेंस क्या है, कितना है, 100 मीटर। एंड नाउ एंगल मेड विद अपर हॉरिजॉन्टल। तो जो दूर वाली हम यहां तक आ रहे हैं, तो दैट इज वाई ये एंगल स्मॉल होगा। एंड नाउ दिस इज क्लोजर, तो एंगल 60 होगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? एंगल को कैसे देखना? अदिति, हर्षिनी, मानसी, मनसुख, इशिका, लविश एंड क्रिस्टीन, क्लियर है बेटा? जस्ट रिस्पॉन्ड इट, यस यस हर्षिनी। So why angles are creating in the opposite side? वो उन्होंने बेटा ऑर्डर में दे दिया बस। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, जब हम किसी हाइट के पास मूव करेंगे एंड वी आर लुकिंग डाउनवर्ड, तो जो बड़ा एंगल आएगा वो
जो पास होगी चीज उसके, जैसे यहाँ पर बोट थी बेटा, नियरेस्ट बोट, इसका बनेगा। जो बेस के जितनी पास होगी चीज उसका एंगल ज्यादा बनेगा, ऑलवेज रिमेम्बर इट। No, so my question is why the angles are made at the top? Because we are looking downward beta, we are looking Okay, okay. downward, we are looking downward. Is it Okay, clear? sir. Yes. Okay. Yes, तो draw the figure, we have drawn it. तो एंगल को कैसे चूज करना बेटा, ये आपने ध्यान देना बस इसमें। तो एज पर दी जो एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल किसके अल्टरनेट होगा बेटा, जो नीचे आ जाएंगे एंगल, बस ये इसका अल्टरनेट यहाँ पर बन जाएगा। तो जो एंगल ऊपर बनेंगे वो नीचे आ जाएंगे, तो ऑलवेज यही होता है, ठीक है। तो नाउ दोनों ट्रायंगल्स पर क्या लगाना है हमने, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। तो पहले स्मॉल, जितनी ट्रायंगल्स उतनी ट्रायंगल्स पर फंक्शन, तो पहले स्मॉल ट्रायंगल्स पर लगाते हैं। एंड वी नो, क्या बेटा, ये पता है हमें, अगर हमें ये पता लग जाए इसमें, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है, ऑलवेज tan थीटा ही लगता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद हाइट्स एंड बेसिस। तो tan 60 स्मॉल ट्रायंगल में आया बेटा, एबीसी ट्रायंगल में, that would be tan 60 would be p upon b, and p is equal to, that is our p, and it is ab, and upon bc we know 100 meter. So tan 60 is √3 and ab would be कितना आ गया बेटा, that is 100 √3 मीटर। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके। नाउ जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसको देखो बेटा, क्या है उसमें, बी डी इज पूरा बेस बन गया बी डी। तो ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी। तो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द बेस, दैट इज वाई हमें परपेंडिकुलर पता लग गया। तो परपेंडिकुलर पता लग गया एंड वी आर फाइंडिंग द बेस। तो tan 30 किसके इक्वल आएगा बेटा, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी एंड बेस पूरा बी डी। तो tan 30 is 1 upon √3 and AB we know 100 √3 and BD we have to find out। तो BD की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दो √3 मल्टीप्लाई √3 and that would be 300 मीटर। तो पूरा बेस कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। एंड सी, तो सी पर है एक बोर्ड एंड एक डी पर है, तो बी सी को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो बी डी माइनस बी सी, दैट वुड बी आर सी डी, जो डिस्टेंस फाइंड आउट है हमारा। तो 300 माइनस 100 दैट इज 200। इज इट क्लियर बेटा सभी को? किसी का डाउट कोई? हर्षिनी, मानसी, No, sir. मानसी, मानसुख, गणेश, अदिति, इशिका, यस बेटा मानसुख क्लियर है, ओके। इशिका, हैव यू एनी डाउट? क्रिस्टीना, ओके No, sir. ओके ओके बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, जितनी ट्रायंगल्स होंगी उतनी बार फंक्शन यूज करेंगे हम, उतनी बार ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन उसमें ट्रायंगल बनाकर यूज करेंगे। Sir, in angle of elevation and in angle of depression, in both the cases, tan theta. यस बेटा, तो tan थीटा तो वही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग जाती है, ऑलवेज रिमेंबर इट। तो जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है ना, वो क्या होता है, वो जैसे ऊपर वाला ट्रायंगल ये आ गया, तो इसका नीचे अल्टरनेट सेम वही एंगल ऑफ एलिवेशन में आ जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। तो पोल क्वेश्चन फॉर यू बेटा,
yes, angle of depression of a point on an object being viewed is angle formed by the line of sight with the किसके साथ बनता है always angle? Yes, Christina. किसके साथ एंगल बनता है बेटा always? We always considered vertical or horizontal. Answer it in class forum. Answer it in class forum बेटा. All of you. तो एंगल ऑलवेज किसके साथ कंसिडर करते हैं हम? आंसर इट बी यस. तो भी हॉरिजॉन्टल के साथ करते हैं. यस क्रिस्टीना. फॉर अदर्स मनसुख यस बेटा, वेल डन. दिति वेल डन. यस हर्षिनी. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? गणेश एंड इशिका, मानसी. यस ओके. तो ऑलवेज कंसिडर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं. जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बेटा, जो ये वाला होता है ना, वी आर लुकिंग डाउनवर्ड एंड दैट इज आवर हाइट. जो ये यहाँ पर एंगल आएगा एंड यहाँ पर जो बेस होगा, तो सेम एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ ये एंगल बन जाता है बस. तो ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मोर देन वन एंगल दिए होते हैं, तो ऑलवेज कंसिडरेट जो एंगल बड़ा होगा वो बेस के पास होगा. अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ 90 डिग्री का लगाऊं तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा. तो 90 डिग्री का तो बनता नहीं, तो 60 का ऐसे बनेगा. अगर मैं 45 कह रहा हूं तो 45 ऐसे बनेगा एंड 30 इसके दूर बनेगा. तो दैट वुड बी एंगल ऑफ 30, 45. तो जितना बेस के ये फुट के साथ बेटा इसके नियर होते जाएंगे तो एंगल हमारा बढ़ता जाएगा. तो यही ध्यान देने वाली बात है बस. यस, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द गिवन फिगर. फाइंड आउट बेटा. तो कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? एक तो नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर. इफ दैट इज 20, दैट इज 20. ये फाइंड आउट करना. ये कैसे फाइंड आउट होगा भाई? अगर हमें ये पता लग जाए तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? नीचे ट्रायंगल में. फाइंड आउट बेटा क्विकली. एट लीस्ट गिव इट अ ट्राई. गिव इट अ ट्राई बेटा. यस. अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो दैट वुड बी आर एंगल 30. तो नीचे बेस फाइंड आउट कर लो. बेस, इसका बेस बन जाएगा एंड वी वुड नो द वैल्यू ऑफ p. तो p प्लस cd वुड बी आर हाइट ऑफ द टावर. यस बेटा. ओके. यस बेटा. किया किसी ने ट्राई? हर्षिनी, अदिति, क्रिस्टीना, इशिका. I tried, but for me the height is coming as 40. 40. ओके. तो बेस तो यस डूइंग. ओके, क्रिस्टीना का बी आंसर है. यस. यस देखते हैं बेटा. क्रिस्टीना, डूइंग, अदिति. यस बेटा. तो बेस कितना है बेटा? या आपका BC की वैल्यू कितनी आई है ये बता दो. BC इक्वल टू AD कितनी आएगी? हर्षिनी.
ओके, क्रिस्टीना का 80 आ रहा है, डी ऑप्शन। ओके, अदिति का 20√3, यस 20√3, यस So for me also the perpendicular was 20√3. 20√3, ओके ओके, देखते हैं बेटा। ओके अदिति, आई नो इट, 20√3 इज BC, यस यस। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो पहले जो ट्रायंगल ABC है वो उसको देखो बेटा। लेट्स सी ट्रायंगल ABC में क्या बन रहा है, दैट इज आवर एंगल C क्या बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द BC, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। एंड BC किसके इक्वल आ रहा है बेटा, AD, दैट इज बेस ऑफ जो ऊपर वाली ट्रायंगल है। तो क्या आ जाएगा, tan 30 वुड बी इक्वल टू P अपॉन B मीन्स AB अपॉन BC। तो 20, तो 30 क्या होगा बेटा, 1/√3 एंड 20 अपॉन, तो यही आ रहा था BC। अदिति ने भी बोला, आई थिंक आपका भी किसी का आ रहा था, हर्षिनी आई थिंक। तो BC की वैल्यू 20√3 आई है बेटा। नाउ यहां से BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज ED। तो ADE ट्रायंगल में देखो अब tan 60 बन रहा है एंड दैट इज इक्वल टू ED अपॉन AD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो इसको बेटा हमने प्लग इन किया वैल्यू को, तो √3 tan 60 एंड ED वी हैव टू फाइंड आउट एंड AD इज इक्वल टू BC, तो 20√3। तो ED की वैल्यू क्या आई, 20√3 मल्टीप्लाई √3 इज 60। तो 60 किसी ने बोला था आई थिंक, यस। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली बेटा एंड टावर की वैल्यू क्या है, ED प्लस CD, दैट इज 60 प्लस 20, दैट इज 80। तो 80 आंसर वाज राइट क्रिस्टीना का, यस अदिति का यस बेटा। इज इट क्लियर, हर्षिनी, मानसी? Yes sir, it's clear. आपने हाफ सॉल्व किया आई थिंक, तो हाफ आपका रहता था, ठीक है, यस। गणेश, मानसुख, Sir, I have a doubt. यस बेटा। The truth in triangle ADE, the truth 3 should come on a division, right? Why you multiplied with 20√3? नो बेटा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। यहां पर वी हैव अप्लाइड, देखो बेटा दोबारा कर लेते हैं नीचे जो हमारी ट्रायंगल थी, यस। तो वी हैव ट्रायंगल ABC, तो एंगल क्या बन रहा है बेटा, tan 30 बन रहा है एंड tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर AB है बेटा एंड बेस इज BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो AB की वैल्यू we have 20 यहाँ से and we have BC we have to find out. So that was the BC. I think it was the correct for all of you. ये तो आपका सभी का ठीक था and BC की वैल्यू AD के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ADE तो tan 60 क्या होगा बेटा, ED अपॉन AD। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 and ED we have to find out and AD is 20√3। तो अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही हो रहा है ये, Okay sir. ठीक है बेटा, ओके ओके, यस। तो दैट वाज आई थिंक कवर्ड द क्वेश्चन। तो कॉमन डाउट्स क्या है बेटा, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। तो क्या इमेजिनरी लाइन को हम ऑलवेज कंसिडर करते हैं लाइन ऑफ साइट। वैसे बेसिक वो वर्डिंग होती है, टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं टर्म्स। तो लाइन ऑफ साइट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। तो डाउट बेटा आज के सेशन में कोई किसी का, यस किसी का कोई डाउट, अदिति, क्रिस्टीना, इशिका, गणेश, मनसुख, हर्षिनी एंड मानसी। ओके 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 ओके,
तो लेट मी समराइज। तो 2-3 मिनट और लगेंगे बेटा बस, देन वील एंड दिस सेशन। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, यहाँ से बेटा हम देख रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑल्सो द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल when we are looking upward, and angle of depression is same angle made with the horizontal when we are looking downward. And angle of depression में एक चीज और नोट करनी है, when we are moving closer to the height, इसके बेस के नियर हम अप्रोच कर रहे हैं, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। वो जितना क्लोज मूव करेंगे उतना एंगल बढ़ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ध्यान देना है। कभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन था तो 30 हमारा दूर आएगा एंगल एंड 60 पास में आएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हर्षिनी, मानसी, गणेश, इशिका, क्रिस्टीना एंड अदिति, डाउट है बेटा आपका कोई? No, okay. Mansi, have you any doubt? Ganesh? Okay, okay, beta Mansi. Ganesh, Ishika, Christina. Okay, beta. You can leave the class then. Have a nice day. Thanks for joining the class. So, stay tuned to Byju's classes. Bye.